Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 11 a.m. Sunday 28th July, and I welcome you all to market analysis, outlook, and expectations for tomorrow, Monday. Tomorrow would be Midcaps monthly expiry, BankX monthly expiry, and on 31st of July it will be Bank Nifty's monthly expiry. Alright, so ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि we'll discuss in perspective of that. We'll look that what will be the crucial levels for the coming week and for tomorrow what will be our intraday strategy, and for the coming week we'll analyze that how can the market behave, what will be the crucial levels for both Nifty and Bank Nifty, and as well as we'll discuss the OI data also, because the amount of short covering we witnessed on Friday, right, it was not a small one. So we need to have a look at the OI data, that what the OI data is saying. We'll discuss that. We'll discuss our crucial level on the charts, Nifty 50 and Bank Nifty, and we'll check that what will be the crucial level for Monday. All right. We'll discuss some strategy on swing or positional basis for Bank Nifty, for Nifty, and we'll also discuss some news if there are in the market which can affect the market. All right. So without consuming any more time, let's start with the analysis. So let देखो अब क्या हुआ ना कि till the last week, I think Wednesday, Friday, our bias on Nifty 50 or whether on Bank Nifty was negative. Bank Nifty ने कॉम्प्रहेंड किया, एंड बैंक निफ्टी में हम लेवल्स, द लेवल्स विच वी गेव, राइट, 51,500 और 51,250, when those levels broke down, right, we saw a level of 50,400, 50,500. But from that point, even on Friday, I think banks opened a 400 point gap down, but Nifty did not open that much gap down because IT supported Nifty. All right, so even in Friday morning, I updated that do not go to short the banks. कि अगर आप आपको you can go in Telegram group and check that I clearly mentioned that forget shorts until unless we break 5400 again on the downside. क्योंकि मैं अगर आपको if I make you see on the charts, right, Bank Nifty has been continuously falling from past week. We have come from around the levels of 52 250, because we were aiming for that level to get broken. Alright, that level broke, then 50 and 500 came, eventually we came till 50,500. So आप imagine करो, you imagine that you are traveling from 0 to 100. What will be easier from you, to go to 100 from 80 or go to 100 from 0? In what, in which situation you will have to apply more force, more momentum, more energy? Obviously you have to more apply more energy from 0 to 100, right, from logical perspective. So अगर कोई चीज़, if any segment, if any stock has been falling from past 6 to 7 days, or there is a downtrend from past 1.5 2 weeks, so we cannot, and if it's opening gap down again, so we cannot expect the market to go further down, because आप if you go and see, right, आप अगर फ्राइडे का वाई डेटा देखोगे, that was very extreme on बैंक निफ्टी. Alright, the PCR ratio was 0.7. So I've explained this multiple times in my videos. When the PCR ratio is towards either 1.4, 1.5, this is the upper side extreme point, and the lower side extreme point is 0.7, 0.6. So on the lower side, when the PCR is like 0.6, so and we have been seeing a continuous down rally, so there is a high probability that the short position would get unwinded. क्योंकि देखो, जिन्होंने 51,500 पे, 52,000 पे जिन्होंने शॉर्ट किया है, so they will have to book their positions, because let's suppose at 51,500, let's suppose 51,750, somebody shorted 51,700 call, so eventually the market came 1,000 points down. All right, so the premium at which he shorted, let's suppose he shorted at 600 rupees. All right, so the premium he must be seeing currently now is 150 200 rupees. So he will have to book the profit. And like him, there can be multiple traders who will book their profit, because अब देखो, ऑप्शन सेलर ड्रिवन मार्केट होता है, ठीक है. अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो 600 पे, यू आर सेलिंग एन ऑप्शन एट 600 एंड इट हैज कम टिल 200, सो आप बैठे थोड़ी रहोगे उसमें, you will book your profit, right? So whenever this profit booking of any of the side comes, whether it's a short side, whether it's a long side, we see a reversal momentum, and that's what actually happened on Friday in banks. ऑलराइट, तो इसलिए मैंने बैंक्स में शॉर्ट जाने का मना किया. आप शॉर्ट निफ्टी में आ सकते हो, बट फिर मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे मेंशन भी किया था कि इफ़ द नेक्स्ट रैली टू 25
24,000 or 26,000, if the Nifty has to go, it will be fueled by banks, because banks was continuously underperforming for the last week for Nifty. And everybody knows Nifty Bank and Nifty IT, they move opposite in opposite directions. So that also we'll discuss, but let's straight go to the charts. एंड फ्राइडे को देखो अब क्या हुआ कि निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में था आपको अभी विल स्ट्रेट गो ऑन चार्ट्स एंड डिस्कस, राइट? वाई टू डिस्कस वर्बली? सो आई ओपन द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 एंड थोड़ा सा आपको एक बार लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे लेके चलता हूँ, and you'll be able to visualize things what I am currently visualizing. I'll delete all the drawings and all the support zones. Let's not go to daily, let's go to 1 hour. अब देखो, if you can see, we had a very strict trend line here. राइट, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखोगे, आप यहाँ तक भी मार्क कर लो, सो देर वॉज अ कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड एंड द देखो अब कभी भी क्या होता है कि अगर बहुत स्टीप डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड उसके फेवर में अगर मार्केट खुल गया, लेट्स सपोज देयर वाज अ डाउन ट्रेंड एंड मार्केट ओपन गैप डाउन, ऑलराइट, सो क्या होगा कि उसको कंटिन्यूशन मिल जाएगा उस ट्रेंड को, that trend will get a continuation. But what happened on Friday, we opened slightly above, as I was mentioning कि अगर आपका एक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा है और आपको एक गैप डाउन मिल जाए तो आपको उस ट्रेंड का कंटिन्यूशन मिल जाता है. बट निफ्टी ऑन फ्राइडे दैट थिंग डिड नॉट हैपन. वी ओपन फ्लैट, एंड वो फ्लैट हम इसलिए बोला क्योंकि यूएस का आई थिंक थर्सडे को जीडीपी डेटा आया एंड दैट केम एज पॉजिटिव. सो वहाँ से पूरा यूएस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया एंड आईटी स्टार्टेड रनिंग अप. तो आईटी अगर भागने लगा तो हमारे मार्केट में क्या हुआ, आईटी ने गैप फ्लैट करा दिया और बैंक्स नेगेटिव थे. ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे ओवरनाइट सिनेरियो चेंज हो गया एंड वी हैड टू चेंज आवर व्यू इन पर्सपेक्टिव कि भाई यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है. एंड जो लाइक द यूएस मार्केट आई ऑब्जर्व्ड आई थिंक ऑन थर्सडे, उसको देखते हुए आई पुट एन ऑडियो नोट ऑन टेलीग्राम ग्रुप ऑन फ्राइडे कि भाई देखो, अगर अब मार्केट को गिरना है तो या तो 24,100 तोड़ेगा मार्केट, तो उसके बाद ही शॉर्ट होगा. बट अगर 24,450 500 या 550 तक जा रहा है मैक्स, आप 550 तक शॉर्ट रह सकते हो. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मतलब आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि ओवरनाइट भी चेंज हो सकता है मार्केट. ऑलराइट, सो अब क्या हुआ था कि थर्सडे की क्लोजिंग पे आपके जो अगस्त के फ्यूचर्स थे वो काफ़ी नीचे जाके बंद हुए थे, विच वाज प्रमोटिंग अस टू कैरी फॉरवर्ड पुट्स ऑन अ पोजिशनल बेसिस कि हाँ ठीक है, अगर इफ समवन इज शॉर्टिंग इन अगस्त, सो उनके दिमाग में कुछ होगा. बट जो यूएस का जीडीपी डेटा आया, दैट propelled the markets, that shot the markets up, and due to which we saw a short covering on Friday. That was the main reason I put that audio note, and we even before the markets opened, we changed our view towards on the bullish side. And the main thing which supported the bulls is bank nifty opened 400 points gap down but nifty opened flat. क्योंकि अगर आपको और फॉलो अप इफ यू वांट डाउन साइड इन निफ्टी, यू नीड टू ओपन ईदर बिग गैप डाउन और स्लाइड गैप डाउन. बट वी ओपन आई थिंक पॉजिटिव ऑन निफ्टी ड्यू टू आईडी एंड वी ओपन 400 पॉइंट्स गैप डाउन इन बैंक निफ्टी. सो दैट थिंग कि अगर आपको देखो, जैसे आप लास्ट डे आप शॉर्ट्स कैरी करके जा रहे हो, बहुत लोग शॉर्ट्स कैरी करके गए होंगे क्योंकि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ऑलराइट. बट जो शॉर्ट्स कैरी करके जा रहे हैं या जो लॉन्गर टर्म के शॉर्ट्स, उनको दिख रहा है कि मार्केट पॉजिटिव खुल रहा है एंड यूएस मार्केट इज पॉजिटिव. सो काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग आ सकती, क्योंकि आप देखो उनके जो बियर्स थे, उनके मन में पैनिक आ गया होगा कि अगर व्हाट बिकॉज बैंक निफ्टी इज ओपनिंग गैप डाउन, बैंक निफ्टी में सेलिंग सैचुरेटेड है, प्लस योर आईटी इज डैम पॉजिटिव, तो ये दोनों मिलके आपके बियर्स के माइंड में उन्होंने फियर इनकल्टिवेट किया एंड दे वर फोर्स टू टेक आउट देयर bearish positions. And when they took out the bearish positions, we can see the amount of short covering. So अगर हमें फ्राइडे को गैप डाउन मिलता निफ्टी में सपोर्टेड बाय आईटी, देन वी कुड हैव सीन अ डाउन ट्रेंड. सो आपको मार्केट ओपनिंग से भी थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि यार मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकता है. All right, so this was on Friday, and we saw a very, I think, market went 400 points up from like around market open flat, 200, 24, 450, and from 450 markets closed at 850, a beautiful 400 points rally, and we captured the whole move. मैंने ऑडियो नोट में भी अपना बायस आई थिंक मैंने एक्सप्रेस किया था कि अगर आप शॉर्ट कहाँ तक रह सकते हो, 24, 500, 550 टॉप्स. अगर 550, 600 टू ट्राई, मैंने क्लियरली मेंशन किया था, इफ 24, 600 इज ब्रेकिंग, आई थिंक यू विल बी अ फुलिश मैन टू स्टे शॉर्ट इन द मार्केट.
ठीक है. सो दिस वाज दिस थिंग, एंड अब यहाँ पे तीन चार सिनेरियोज बन रहे हैं. विल डिस्कस एवरी सिनेरियो ऑलराइट ऑन निफ्टीज चार्ट. ठीक है. एंड दिस वीडियो कैन बी लिटिल बिट लॉन्ग, सो आपके पास वीकेंड का टाइम है, डो नॉट वरी. आप आराम से देखना. ऑलराइट. You'll not go empty handed. Of course you'll get to learn price action points, you'll get to learn, I think, how to uh, uh, manifest the market, how to anticipate something. और इवन मोर देन एंटिसिपेटिंग, अगर मार्केट में कोई लेवल टूट रहा हो इधर ऑन द डाउन साइड और ऑन द अपसाइड, हाउ टू रिएक्ट टू दैट लेवल. जैसे मैंने ऑडियो नोट में डाला कि 24,600 पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है, नहीं आया. इवन आई अपडेटेड दिस सेम मैसेज ऑन ग्रुप दैट आई एम एक्सपेक्टिंग अ 40-60 पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि हम 400 से 600 आ गए तो एक 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुकिंग बनता है. 550 से मार्केट फिर चला जाए 650-700, बट वो भी नहीं आ रहा था. तो दैट वाज विजिबल ऑन द चार्ट्स कि ये मतलब अगर आप 50-60 पॉइंट 24,600 के आसपास भी, इफ यू आर नॉट गिविंग 50-60 पॉइंट्स प्रॉफिट बुकिंग, देन द मार्केट हैज अनदर पाथ. द मार्केट हैज टू गो मोर अप. अगर किसी पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग आता है, मींस वहाँ पे बुल्स आपके पॉज ले रहे हैं, थक गए बुल्स, बुल्स आर टायर्ड. तो दैट इज़ अ पॉइंट फॉर एंटरिंग ऑफ बियर्स और समथिंग. बट आपका रिट्रेसमेंट ही नहीं ले रहा था. Your Nifty was not even retracing to 20 mm on the charts, which was clearly showing the greater strength of bulls in the market. All right, so we'll discuss some of the crucial levels. We'll first go to our weekly charts, and weekly charts again, you know last week, because if you see on the charts, right, last week there was a inverse hammer, inverse bearish hammer, and we discussed that अगर इसके नीचे जाता है तो market can give a good move, and it gave. But every week the same story has been repeating, and I am not sure till, till what point it will be, it will keep itself repeating, keep repeating itself. आप देखो हर वीक मार्केट जाता है नीचे, एंड देयर इज अ ह्यूज बाइंग फ्रॉम द बॉटम, ह्यूज बाइंग फ्रॉम द बॉटम, बाइंग फ्रॉम द बॉटम, बाइंग फ्रॉम द बॉटम, और यहाँ पे तो अल्टीमेट बाइंग आ गया था. ऑलराइट, सो वीकली पे आई एम नॉट सीइंग एनी नेगेटिविटी इन द मार्केट्स अगर, एंड ऑन द contrary I'm seeing huge upside now till the levels of 25 500, 25 600. क्यों? While I'll tell you on daily and hourly time frame. So what we'll do, we'll first mark our you know weekly low and weekly high. Weekly high will more aptly mark on going daily day. I think this is the weekly high, and the concept of this weekly high and weekly low, आप अगर ये देखोगे तो पिछले 4 वीक से मार्केट ऑन एन एवरेज इसी रेंज में बंद है. 24 400 800 पॉइंट की रेंज में. वी डिस्कस्ड इवन दिस रेंज इन आई थिंक लास्ट वीक्स एनालिसिस वीडियो, दैट ये 800 पॉइंट की रेंज के बाहर ही कुछ अच्छा पॉइंट मिलेगा. ये एग्जैक्टली मैंने आई थिंक लास्ट वीक्स एनालिसिस वीडियो आई मेंशन द सेम पॉइंट इन video also, and also telegram, that 24,000 and 24,800, this is the range for me for I think August series. And if the market crosses this range, we'll get a greater trending move. So now this range, if you see, right, this range is crucial. And now if in next week on Monday or Tuesday, if any of this level is taken out, we can see a 600 to 700 point movement on Nifty. I'm saying in this video itself कि अगर अपसाइड पे निकलता है तो पहला टारगेट आपका 25K होगा, सेकंड टारगेट आपका होगा 25 250 300, एंड अल्टीमेट इज 500 600. ऑलराइट, तो देखो ये जो रेंज होती है ना, अगर ये रेंज ब्रेक हो रही है तो इतना ही पॉइंट आप ऊपर कॉन्टेम्पलेट कर सकते हो. तो 25 800 इज द अल्टीमेट टारगेट, एंड ऑन द डाउन साइड अगर 24,000 टूटता है तो 23 200 आपको रेंज मिलेगा. ये ध्यान रखना, नीचे के साइड पे भी आपको इतना ही रेंज मिलेगा 24 200 का. ठीक है, 23 200 का, आई एम सॉरी. सो दिस 800 पॉइंट रेंज, इफ 24,000 इज ब्रेकिंग, सो आपको 23 200 इजीली आपको अचीव होता हुआ दिखेगा. ऑलराइट, सो 23 200 कहाँ पे है? वील मार्क दिस लेवल ऑल्सो 23 200. सी, वील मार्क दिस लेवल. ठीक है, और अपसाइड पे मैं आपको 25 800 का टारगेट दे रहा हूँ. ऑलराइट, so I'm giving you this target of 25 800 on the upside, and 23 200 on the downside for next couple of weeks. So these will be my prime targets. And देखो 25 800 would be greater supply zone. अगर मार्केट वहाँ पे आता है तो उससे अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती आपको. 200 टू गिव अ 200 पॉइंट स्टॉप लॉस टिल 26,000. 26,000 से रिवर्स करेगा, वापस 25 800 पे आता है और शॉर्ट स्टार्ट करो. ऑलराइट,
On the downside, if 24,100 gets broken और 24,000 gets broken, सिंपल सीधा मूव है आपको 23,200 का, उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है. सो वेन एवर वी आर इन अ रेक्टेंगल बॉक्स रेंज, तो जितना वो बॉक्स रेंज का पॉइंट होता है सिंपल है, अगर वो बॉक्स रेंज टूटती है तो equal amount of points on whichever side the markets are breaking, we can mark our targets. So in on weekly levels in Nifty I'm not seeing any negativity, and जो short covering आई है उसको देख के तो आप पॉजिटिव ही मान सकते हो. लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम. एंड डेली टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट्स टुक सपोर्ट फ्रॉम 20 EMA ऑन डेली टाइम फ्रेम, right? We did not close below 20 EMA, and we took a support. And the main thing आपको ये देखो, मैं आपको इस how you can preempt that tomorrow आपका एक bullish दिन हो सकता है. ये देखो continuous downtrend था, and we saw a very good bullish candlestick. All right, although this was a trend line resistance, देखो यहाँ से market it was continuously falling, this was a trend line resistance, and we carried short. It was a very probable for us to carry shorts कि market यहाँ तक आएगा and गिर जाएगा. But the only thing which happened against us is markets opening flat, even though Bank Nifty opened 400 point gap down. So the bears feared कि अगर IT तो वैसे ही बढ़ चुका, and if banks also started running जिसमें already इतना सेल आ चुका है, तो they could get trapped, and उन्होंने वहाँ पे जो and Nifty 50 opened flat, they started unwinding their bearish positions. And the more this thing we can see on the charts कि वो एक chain reaction बनता है कि आप मान लो कि 24,400 के कॉल सेलर्स भाग रहे हैं, तो वो दैट शोज द फियर इन द कॉल सेलर्स, एंड इट triggers a chain reaction. Then 25 500 25 550 25 600, every call seller will start running away, and which creates a bullish momentum in the market. All right, तो दिस थिंग कैन बी सीन इन ऑर्डर फ्लो डेटा. एंड वी मैंने वाई डेटा का ऑर्डर फ्लो डेटा ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट भी किया था कि इन बैंक निफ्टी आई एम सीइंग ह्यूज अनवाइंडिंग ऑफ बेरिश पोजीशंस. इसलिए जब हमने बैंक निफ्टी का भी हमने वी कैप्चर्ड मूवमेंट टिल 51,300 फ्रॉम 58,20 500 पॉइंट्स वी कैप्चर्ड इन बैंक निफ्टी ऑल्सो ऑन फ्राइडे. ऑलराइट, सो डेली टाइम फ्रेम में मुझे कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है. प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, सिंपल है, दो चीज़ें मार्क कर लेते हैं. प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, we have marked previous day high. See, this is previous day high 860, and previous day low is 24,418. All right, so below 24,418, if we cross, first target would be 24,350. ठीक है, अगर प्रीवियस डे लो के नीचे आते हैं तो 350 पहला टारगेट होगा, विच इज 20 EM ऑल्सो. 350 पे फिर अगर, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है तो हाइयर प्रोबेबिलिटी मार्केट ऊपर ही निकलेगा. ऑलराइट, एंड जो अगर आपके इफ़ यू ऑब्जर्व ग्लोबल मार्केट्स ऑल्सो, राइट, Dow Jones and Nasdaq were hugely positive, but somehow I am not able to digest this thing कि गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव नहीं हुआ. गिफ्ट निफ्टी क्लोज फ्लैट. इफ यू सी गिफ्ट निफ्टी, राइट, अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे 21 पॉइंट्स अप है. This is very less in comparison to what US markets gave a momentum. All right, क्योंकि US markets, I think Dow Jones closed above 2%, I think 600 700 points, and Nasdaq also I think 1.5%. So उसके comparison में this is very less. All right, and let's see that markets, because देखो कुछ लोग क्या बोलेंगे ना कि इतना बड़ा देखो रैली आता है तो दिस इज़ वेरी वायबल कि आप पहले पुल बैक में सेल नहीं करते, तो यू लेट द मार्केट कम हियर एंड यू लेट द मार्केट फॉर्म अ डबल टॉप. सो दिस ऑल्सो कैन बी अ सिनेरियो. ऑलराइट, सो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है दैट मार्केट्स कैन सी दिस एज अ डबल टॉप फॉर्मेशन. ऑलराइट, ये मार्केट एक डबल टॉप फॉर्मेशन देख सकता है. एंड अगर यहाँ से आर्ली बेसिस पे अगर प्रीवियस आर का लो टूटता है, सो वी कैन इवन शॉर्ट द मार्केट्स हेयर. सो वी लुक दैट एट 15 मिनट्स एंड आर्ली कैंडलस्टिक. बट अभी द अमाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग वी हैव सीन इन द मार्केट्स एट दिस लेवल, इट इज not something we can ignore. All right, so previous day high is 24,860, about 24,860. I think weekly high is around 24 890 or 24,900. उसके ऊपर सिंपल है, 25,000 would be the first target for tomorrow I'm talking about, and 25,000, above 25,000, every 50 points you can get a momentum, right? 24 2550, then 25 100, then 150, and then eventually 25 200, and then 250.
राइट। सो एवरी 50 पॉइंट्स में ऐसे निफ्टी मूव्स इन दिस पैटर्न ओनली, हर 50 पॉइंट पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा। एंड मार्केट इफ मार्केट हैज टू टेक एनी रेजिस्टेंस, तो वो वहाँ से लेके 100 पॉइंट का रेजिस्टेंस आता है, फिर वहीं से वापस पुल बैक आ जाता है। ठीक है, ऑन द डाउन साइड वील हैव टू मार्क, बिकॉज अब अपर एंड पे, तो वी हैव टू मार्क अर्ली। तो अगर आपको शॉर्ट बेरिश ट्रेड करना भी है ना, एक, अगर इफ द मार्केट एक्चुअली हैज टू सी दिस एज अ डबल टॉप, देखो तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुल के 24 860 890 निकाल देता है, तो यू कैन टेक अ बुलिश ट्रेड, गिव अ 50 to 70 पॉइंट स्टॉप लॉस ऑन द डाउन साइड। लेट्स सपोज मार्केट्स आर ओपनिंग फ्लैट और इवन 30 पॉइंट्स गैप अप, 24 900 पे खुल रहा है, 24 860 पे खुल रहा है, let the market sustain for 15 minutes above 24 900, give a take a bullish trade, give a I think 50 to 70 point stop loss till 830 820, and keep trailing the stop loss, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे, क्योंकि देर आर ह्यूज नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज एट दिस पॉइंट। यहाँ पे ऑलरेडी आपके कॉल सेलर्स हैं, यहाँ पे आपके बेयर्स बैठे होंगे, एंड लॉजिकली अगर इतनी बड़ी रैली आ रही है तो उसके फर्स्ट पुल बैक में आप सेल नहीं करते। ऑफ कोर्स वी इनिशिएटेड अ सेल पोजीशन, बट पहला पुल बैक में हमेशा एक आपको रिवर्स पुल बैक मिलता है, एंड यहाँ पे द मार्केट हैज टू टेक अ डिसीजन ऑन मंडे that either it has to go negative, either the market will take this as a double top, और मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके यूं तोड़ देगा। क्योंकि अब देखो, आप सिंपल सी आपको मैं प्राइस एक्शन की बात समझाता हूँ। टेक दिस पॉइंट एज 0, ऑलराइट, एंड टेक दिस पॉइंट एज 100। so we have already traveled from 0 to 100 and we haven't seen us pull back, all right। हमें एक पुल बैक देखने को नहीं मिला है, एंड वी कैन सी अ पुल बैक ऑफ अराउंड 100 to 150 पॉइंट्स। तो दैट्स व्हाट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि आप अगर 0 से 100 मूव कर रहे हो, ऑलरेडी मार्केट यहाँ से आ गया है, सो द पीपल, द ट्रेडर्स हु हैव इनिशिएटेड अ कॉल सेल पोजीशन, अगर फ्लैट खुलता है तो दे विल ट्राई टू बुक देयर प्रॉफिट्स एंड एंटर अगेन एट दिस लेवल। सो मार्केट ऐसा कर सकता है कि यहाँ पे अगर खुल रहा है तो ये एक डबल टॉप वाला रेजिस्टेंस आएगा, एंड मार्केट विल कम एट अराउंड 24 750 और 700। ऑलराइट, एक राउंड लेवल तक मार्केट यहाँ पे आ सकता है, इस लेवल तक, ये देखो ये वाला लेवल जो है, ऑलराइट, एट द प्लेस। तो मार्केट क्या कर सकता है इस पॉइंट पे आके, यहाँ से एग्जैक्टली, तो दिस कैन बी योर वेरी गुड प्लेस टू एंटर लॉन्ग्स अगेन, ऑलराइट। तो ये वाला लेवल आपका जो 24 777 है, दिस कैन बी अ वेरी गुड पॉइंट टू एंटर योर मार्केट। अब देखो मार्केट अगर यहाँ तक आता है, सो फ्रॉम दिस टू दिस ये ब्रेकआउट करना इजी होगा या स्ट्रेट यहाँ से यहाँ इजी होगा, आप खुद सोचो। all right, I hope you are getting the points which I'm trying to explain in terms of price action, और जैसे साइकोलॉजी चलती है, प्राइस कैसे मूव करता है। 0 से 100 जाना बहुत मुश्किल होगा, 80 से 100 जाना इजी होगा। ठीक है, सो अगर 0 से 100 आया तो वो एक बार तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग लेगा 80 70 तक आके यहाँ पे, और आपके जो जिन्होंने यहाँ पे ये पूरी रैली मिस कर दी फ्राइडे को, तो दे विल ट्राई टू ब्रिंग द मार्केट्स डाउन एंड दे विल अगेन एंटर एट अ बेटर प्राइस। सो दिस थिंग यू नीड टू लुक कि अगर यहाँ से डबल टॉप रेजिस्टेंस ले रहा है, सो आप एक बेरिश ट्रेड बना सकते हो इफ़ योर मार्केट्स ब्रेक बिलो। अगर आपको बेरिश ट्रेड लेना है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। इफ़ यू वांट टू टेक अ बेरिश ट्रेड, ओनली बेरिश ट्रेड बनेगी 24 760 के नीचे। इफ 24 760, क्योंकि वहाँ पे 5 में भी आर ले, सो इफ 24 760 ऑन द डाउन साइड्स गेट्स ब्रोकन एंड सस्टेन फॉर 15 minutes, वी कैन सी the first level of 24 650, all right, 650. If 650 also gets broken, we can see the levels of this level 24 580। ठीक है, तो इतना आपको प्राइस एक्शन क्लियर है, क्योंकि देखो अब नीचे से मार्केट ऑलरेडी इतना ट्रैवल करके आया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि पहला एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक दे। अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है तो ऐसा कुछ मार्केट प्राइस एक्शन बना सकता है, एंड दिस स्ट्रॉन्ग रैली कैन शो अ साइडवेज टू लिटिल बिट स्मॉलर करेक्शन, एंड ये फिर एक बुलिश फ्लैग एंड पुल बना के यहाँ से ब्रेकआउट कर देगा। सो दिस ऑल्सो कैन बी द पॉसिबिलिटी। सो ये कल आपको लाइव मार्केट में ही देखने को you'll be able to get to know that पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेयर द मार्केट्स आर ओपनिंग। ऑलराइट, दिस इज क्लियर। अगर मार्केट यहीं ओपन हो रहे हैं तो, और एंड इफ द मार्केट आर सस्टेनिंग, देयर इज ह्यूज प्रोबेबिलिटी मार्केट चला जाए ऊपर। बट इफ द मार्केट्स आर ओपनिंग लाइक समवॉट आई थिंक 20 30 पॉइंट्स डाउन, तो मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है यहाँ तक। This will be a very crucial point for bulls to again re-enter if the market actually has to be bullish, or it has to actually go above 24 800। सो आई थिंक आपको स्ट्रैटेजी क्लियर होगी नेक्स्ट वीक के लिए भी डाउन साइड लेवल्स क्या हैं, क्योंकि मैंने आपको एक 800 पॉइंट का रेंज दिया है, उसके ऊपर आप बुलिश हो एंड उसके नीचे आपको बेरिश रहना है, ऑलराइट। एंड आपको इंट्राडे ऑन द बेसिस निफ्टी का मैंने ओपनिंग के बेसिस पे भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी दे दी है। सो लेट्स क्विकली गो टू निफ्टी बैंक। अब देखो निफ्टी बैंक में क्या सीन है ना,
as we expected on Friday, right? कि आपका you are seeing a 400 point gap down. I'll first make you go and see on early time frame, and we opened another gap down, but आप क्लियरली आप देखो मार्केट कहाँ से चलते हुआ आ रहा है 53,000 से. सो कहीं तो at some place, see, at some place the people who have sold bank nifty here, the people who have sold bank nifty here, the people who have sold bank nifty here, where will they book their profits? अगर इतने सारे सेलर्स हैं मार्केट में, तो उनको एक अगर 400 पॉइंट गैप डाउन हो रहा है, दे आर सीइंग अ परफेक्ट एग्जिट. तो ये आप चीज़ इमेजिन करके रखो, मतलब आप लर्न करके रखो. इफ़ यू आर सीइंग अ कंटिन्यूस फॉल इन एनी इंडेक्स, एनी स्टॉक फ्रॉम पास्ट 4 to 5 days, एंड अगेन इट्स ओपनिंग अ गैप डाउन, और वो डेली पे कहीं ना कहीं सपोर्ट पे है. अगर आप डेली पे सपोर्ट देखोगे तो इट वाज नियर 50 MA, 50 डीमा जिसे हम बोलते हैं, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. 50 डीमा के पास था वो, एंड वी गेव अ क्लोज अबव प्रीवियस डे हाई एंड ऑल्सो 50 डीमा. ऑलराइट. सो अब मार्केट के पास तो ये पहला पॉइंट आपने आपको समझ में आया, क्योंकि ये देखो यहाँ से एक रैली चल रही है एंड मार्केट ने ये एक करेक्शन दिया. तो अर्लियर वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये एक बुलिश फ्लैग एंड पोल होगा एंड मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा. बट मार्केट ब्रोक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस यू नो फ्लैग. सो अब मार्केट के पास ये एक फ्लैग है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, फिर इस पॉइंट पे बैंक निफ्टी वापस आप शॉर्ट कर सकते हो. दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू एंटर शॉर्ट्स अगेन इन बैंक निफ्टी. सो दैट वाज द मेन रीज़न कि हमने अगर इफ़ वी टोल्ड यू टू नॉट टू शॉर्ट बैंक निफ्टी अंटिल अनलेस वी क्रॉस 5400 ऑन द डाउन साइड. सो क्योंकि आप ये देखो यहाँ पे क्लियरली एविडेंट दिख रहा है कि ऑलरेडी मार्केट इतना गिरते हुए आ रहा है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है. सो इस पॉइंट पे जब मार्केट ने ये पॉइंट तोड़ा ना, सो इट वाज क्लियरली एविडेंट कि अब यहाँ पे bears have given their strength and bulls are taking over. So now what your strategy should be for the coming week and for Monday. First we'll go to weekly, right? वीकली पे देखो अब क्या है कि थोड़ा सा नेगेटिव स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी में. देर इज नेगेटिव स्ट्रक्चर बिकॉज इफ़ यू सी ऑन वीकली चार्ट्स, ठीक है, देखो नीचे से एक आपको प्रॉफिट मतलब शॉर्ट्स की प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, बट दिस इज द फर्स्ट वीक आफ्टर हाउ मैनी आई एम नॉट श्योर. दिस वाज द वीक वी क्लोज्ड बिलो 5 EMA. Alright, and also we gave a weekly close, below previous week low. So यहाँ पे आपका जो 3 कैंडलस्टिक रूल है, हाई बिलो द प्रायर हाई, क्लोज बिलो द प्रायर लो, लो बिलो द प्रायर लो. तो यहाँ पे ट्रेंड आपका चेंज हो गया था, बट देन अगेन वी रिवर्स्ड, वी टुक अ सपोर्ट फ्रॉम 20 MA एंड देन वी अगेन स्टार्ट मूविंग बैक अप. ऑलराइट. सो यहाँ पे आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, after 10 weeks market has given a weekly close below prior day, prior weekly low. The high is below prior week high and the close is below prior week low. So the trend for the weekly trend, the bank nifty trend is negative now. Remember that I'm not saying to go bullish on banks by huge quantities, but we can see a profit booking till what level we'll discuss in earlier probably 15 minutes time frame. तो अब यहाँ पे आपको क्या मार्क करना है, you just need to mark weekly high and weekly low. All right. So weekly high is 52,500 and weekly low is 5440. So any shorts which has to be triggered on a positional basis again will be triggered below 5440. All right. So 5440 के नीचे we can see the first target of 50,000. Our great target 50,000 and 50,000, क्योंकि 50,000 के अगर मार्केट यहाँ से हल्का सा और मूव करता है, so this 20 डीमा, all right, it will come to 50,000. So 50,000, if the market if the banks goes till I think 51,500 or 52,000, that will be a good point for shorting the banks again, and the markets can again give you from somewhat here to 50,000. All right. So 50,000 would be 20 DMA and the markets can move here. But for me देखो, अब इसको आप बहुत सारे तरीकों से देख सकते हो. There are वेरियस पॉइंट ऑफ व्यूज फ्रॉम विच यू कैन सी. क्योंकि देखो मूविंग एवरेजेस है, 5 मिनट्स के नीचे क्लोज दिया, वायबल टारगेट बनता है आपका 50,000 फॉर द नेक्स्ट वीक. आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, दैट ऑल्सो हैज़ टर्न नेगेटिव ऑन वीकली टाइम फ्रेम. विल लुक ऑन डेली पे क्या दिख रहा है. ऑलराइट. एंड मूविंग एवरेज के हिसाब से वीकली पे तो ठीक है. लेट्स गो टू, और आई हैव मेड यू मार्क द रेंज 52,500 के ऊपर काफ़ी बुलिश हो जाएगा बैंक्स, एंड 50 कोई भी शॉर्ट अगर ट्रिगर होना है तो 5440 के नीचे. लेट्स गो क्विकली गो टू डेली टाइम फ्रेम. ऑलराइट. एंड see, on daily time frame, still we have not trend positive, because जो low है that is below the prior day low.
अगर आपको ट्रेंड वापस बुलिश करना है, सो हाई शुड बी अबव द प्रायर हाई, your close should be above prior day high, and your you know लो शुड बी अबव द प्रायर डे लो, बट यहाँ पे लो प्रायर डे लो के नीचे है, अबव नहीं है. सो यहाँ पे स्टिल ऑन द डेली टाइम फ्रेम आर ट्रेंड इज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू थ्री कैंडलस्टिक रूल. ऑलराइट, but now you need to mark on daily time frame, since we are we have been seeing a good bearish rally in banks like that. All right, so your what you need to take care of is, देखो यहाँ पे if you try to draw bullish pole and flag pattern, right, ये आप ऐसे you can draw something like that, and let's draw something like this. All right, so this was a bullish flag and pole pattern which got a breakdown. All right, and market ने ये जो आपका फ्लैग है उसका ब्रेकडाउन दिया, एग्जैक्टली यहाँ पे आके क्लोज दिया है. सो अब व्हाट द मोस्ट प्रोबेबल थिंग व्हाट टेल्स मी इज मार्केट कैन मूव टिल दिस पॉइंट लाइक दिस. मार्केट इधर प्रॉब्ली ऑन मंडे एक ऐसी कैंडलस्टिक मिल जाए, फिर एक इनसाइड, एंड देन मार्केट कैन मूव back up here and till this point which is 52,000. that's what I'm saying, 52,000 will be crucial. क्योंकि देखो अगर बैंक निफ्टी का आपको अभी ऑन डेली टाइम फ्रेम अगर मैं सब हटा दूं, अभी भी आपको ये बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज ही दिखेगा. क्योंकि देखो यहाँ से वी गेव अ सेल देन राइज, वी गेव अ सेल देन राइज, वी गेव अ सेल देन राइज. तो बैंक निफ्टी पैटर्न हैज बीन सेल ऑन राइज, तो ये सेल हुआ ऑन राइज. दिस विल बी मोस्ट क्रूशियल पॉइंट जहाँ पे आप वापस सेल कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 50,000 आपका. ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ से 47,000 से मूवमेंट किया, इसका 50,000 परफेक्ट रिट्रेसमेंट बनेगा. यहाँ पे मार्केट हैज़ टू टेक अ बिगर डिसीजन कि मेरे को और नीचे जाना है या मेरे को यहाँ से बेस बना के आई नीड टू कंटिन्यू माई जर्नी. सो अगर मार्केट यहाँ से आता भी है तो यहाँ पे फिर एक आपको डबल टॉप मिलेगा, फिर मार्केट कैन कम बैक टू दिस लेवल, and again market can go back somewhat like this. So इस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट एंड दिस रेंज नाउ वुड बी कमिंग रेंज फॉर मंथ्स. तो ऐसे मूव कर सकता है मार्केट बिटवीन द रेंज ऑफ 53,000 and 50,000. All right, so this I think should give you a on a brief रेंज दैट मार्क बैंक्स कैसे मूव कर सकते हैं. सो एक ये आप you can mark a bigger range of 3,000 points, 53,300 and 5400. so ये 3,000 पॉइंट की रेंज है एंड मार्केट्स कैन मूव इनसाइड दिस रेंज. ये वीडियो आप यू कैन वॉच दिस वीडियो एवरी डे एंड मार्क दिस कि आपको एक मूवमेंटम यू मिलेगा, देन यू कैन सी अ मूवमेंटम. और द मार्केट हैज़ टू टेक अ डिसीजन एट 52,000 that either I have to be sideways here for a little while and then go up, then take resistance from here, or I have to take a resistance from here itself. So markets ये दो डिसीजन लेंगे. So आपके लिए क्रूशियल लेवल्स ये देखो, just one second, we marked some levels weekly, right, weekly high and weekly low. I'll bring back those levels. Yeah, so these are very crucial levels. So daily for Monday we'll mark this one 51,400 daily high and daily low is 5440. ऑलराइट, दैट वाज वीकली लो आल्सो. सो अगर 5440 निकलता है मंडे या ट्यूसडे किसी भी दिन, राइट, सो दैट वुड बी अनदर sell off, that would be a chance of another sell off. But on the upside, since we are closer to the upside resistance which is 51,400, we can see a greater move. अब देखो यहाँ पे आप खुद एक प्राइस पॉइंट के उससे समझो, यहाँ पे सेलर्स होंगे, यहाँ पे सेलर्स होंगे. सो ये वाले जो बायर्स होंगे ये एक बार यहाँ तक तो मेरे को लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग देंगे 300 पॉइंट्स की ओपन के बाद. बट 51,000 कैन बी अनदर बेस बिल्डिंग पॉइंट फॉर अ ग्रेटर मूव अबव दिस टिल 52,000. सो आपका 52,000 तक का तो मूव मेरे को लग रहा है क्लियर है. राइट, यहाँ से 51,300 से टिल 52,000, बट द कंडीशन इज वी नीड टू क्रॉस प्रीवियस डे हाई विच इज 51,450. अगर प्रीवियस डे हाई ही क्रॉस नहीं होता एंड मार्केट स्टार्ट कमिंग, बैंक्स स्टार्ट कमिंग डाउन लाइक दिस, तो वो एक आपका बेरियर सिनेरियो होगा एंड 50,000 51,000 पे मार्केट विल अगेन टेक अ डिसीजन दैट उसको क्या करना है. सो इफ द बैंक्स ओपन फ्लैट टू लिटिल बिट गैप अप, तो आपको सिर्फ वेट करना है प्रीवियस डे हाई निकलने का. इफ प्रीवियस डे हाई इज गेटिंग क्रॉस्ड, आप 150 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दो एंड यू कैन
keep trailing your stop loss. All right, यहाँ पे एक bullish trade करना and you can see a movement like this. Then probable आपको 51,500 पे एक base बन सकता है, वहाँ पे support बन सकता है, and you can continue your journey towards 52,000. ऑलराइट, सो नीचे के सिनेरियोज हमने डिस्कस कर लिए थे, डेली हमने मार्क कर लिया. लेट्स गो टू 15 मिनट्स एंड विल लुक दैट अगर आपको एक यहाँ पे बेरिश अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो आप वेयर वेयर विल यू फाइंड. ओनली गो आई थिंक शॉर्ट बिलो, क्योंकि देखो ये वाली जो आपका गैप था ना, ये वाला गैप पूरा फिल हो गया. अब ऊपर मार्केट के पास मेरे को नहीं लगता कि कोई गैप बचा है. द ओनली गैप विच मार्केट हैज टू फिल, is there any gap left? Let us check in 1 hour. I don't think so there is any gap left in banks, right? सारे गैप्स फिल हो चुके हैं. ये देखो ये वाला गैप भी, हाँ ये वाला आपका गैप पेंडिंग है. ऑलराइट, सो 53,000. सो दिस इज आई थिंक वेरी फार. उसके पहले काफ़ी मार्केट के पास काफ़ी अच्छे सप्लाई जोन्स हैं. ऊपर सप्लाई जोन्स देखो मार्केट के पास क्या अच्छा सप्लाई जोन है, 52,000. 52,000 इज़ अ वेरी गुड सप्लाई जोन. और अगर मार्केट आता है तो आप यहाँ पे 200 पॉइंट्स के रिस्क ले सकते हो. यू कैन शॉर्ट द मार्केट से, शॉर्ट द बैंक से पर्टिकुलरली. इट वुड बी अ गुड दिस वन सप्लाई जोन. और अगर आप एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव में, इफ़ यू लुक फ्रॉम फिबोनाची पर्सपेक्टिव, तो एक बार ये सारी लेवल्स क्लियर करते हैं. लेट्स ड्रॉ फिबोनाची सीरीज. देखो यहाँ से आपका एक, अगर आप सॉरी, इफ़ यू मार्क अ सिग्निफिकेंट टॉप हेयर, ऑलराइट, आप यहाँ से एक सिग्निफिकेंट टॉप मार्क करो. why the Fibonacci tool is not getting selected, I'm not able to understand. Okay, so you mark a Fibonacci here, top here, and mark a significant low here. ऑलराइट, सो आपके क्रूशल लेवल्स देखो क्या निकल के आते हैं, जो आपके गोल्डन जोन्स हैं. एग्जैक्टली आपका जो 50% का जोन है ना, वो निकल के आ रहा है 5950 पे. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 52,000 वुड बी अ ग्रेटर पॉइंट, क्योंकि जो फिबोनाची ट्रेडर्स हैं उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, और वो लोग बेयर्स भी यहाँ पे और पोजिशन ऐड करने की कोशिश करेंगे फॉर अ फर्दर नेगेटिव ट्रेंड ऑफ बैंक निफ्टी ऑन द डाउन साइड. ऑलराइट, अगर आप, इफ़ यू ट्रेड, ये देखो मार्केट इज सेल ऑन राइज, राइट, सेल राइज, सेल rise. So this is the greater, this is a very highly probabilistic point कि market can move like till like this. Alright, so अभी बैंक निफ्टी में ट्रेंड तो नेगेटिव है. बैंक निफ्टी में आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने बुलिश यहाँ पे क्यों एंटर किया, क्योंकि आई वाज सीइंग अ सैचुरेशन इन सेलिंग. तो आप इस बुलिश मूव का तो फायदा उठाओगे ना, if you are a trader, and if you are not taking advantage of such movement, then I think you need to take advantage of these movements, right? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो 50 आपका गोल्डन जोन आ रहा है, एंड अगर थोड़ा सा आपका मोमेंटम ज़्यादा भी होता है तो 61 तक भी आ सकता है, 52 टू 20 तक का वो लेवल आता है. सो इसलिए बोल रहा हूँ कि वापस वो सारी लेवल्स ले आते हैं, राइट. एंड ये 52,000 बहुत अच्छा जोन होगा सेल करने के लिए इन माई परस्पेक्टिव. और वो एक और चीज़ से आ रहा है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों. अगर आप ये एक पार्ट देखोगे, एंड इफ़ यू सी दिस फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जो हम दैट वी वर डिस्कसिंग इन आर couple of weeks back analysis video, so market एक आपको ये पुल बैक दे सकता है, राइट. सो अगेन, सो देखो आप यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं. यहाँ पे मतलब फिबोनाची का 51% रिट्रेसमेंट है. यहाँ पे आपका एक अच्छा सप्लाई जोन है. यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है, जबकि वो ब्रेक करके आ रहा है. Alright, so 52,000 I think should be the point you need to carefully observe in coming weeks, and in coming for the August series. 52,000 some level I am focusing on, क्योंकि अगर 50,000 निकला तो बहुत बुलिशनेस आ जाएगी, एंड देन वी कैन प्रॉब्ली गो टू दिस कवर द गैप. ये वाला जो गैप कवर है यहाँ तक जा सकते हैं. तो 52,000 आता है निकलता है, दैट इज समवॉट वी हैव टू ऑब्जर्व ऑन मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, क्योंकि वेडनेसडे देयर विल बी बैंक निफ्टीज मंथली एक्सपायरी. सो उसके पॉइंट में भी हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एंड विल कम अप विथ समथिंग. बट टिल देन आई थिंक दीज विल बी सम क्रूशल लेवल्स. सो इफ़ यू गो टू 15 मिनट्स, एंड आप अगर मंडे को फ्लैट, अगर मंडे को देखो गैप खोला तो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको मिल सकती है 51,000 तक. सिंपल है. शॉर्ट आप जा सकते हो 51,000 के नीचे टिल 5440, राइट. बट अगर आप फ्लैट खोल रहे हो और आप इसी रेंज में हो, इफ़ यू आर ओपनिंग समवॉट हियर, सो आई एम not in favor of shorting banks. Either I'll look a bullish trade on a dip. So ये अगर गैप डाउन होता भी है तो I'll take this as a positive dip, and I'll go for level of 52,000. But I'll go short in banks if my level of 51,000 is not sustained. क्योंकि देखो अगर ये 51,000 की level sustain नहीं हुई, so this rally would be a just dead cat bounce,
एंड इफ दिस इज नॉट सस्टेन एंड दिस इज ब्रोकन, सो अगेन वी कैन सी द लेवल ऑफ 5440। और अगर, क्योंकि अब देखो ट्रेंड आपका सेल ऑन राइज है, तो अगर आप 5440 वापस आता है तो देर कैन बी अनदर सेल ऑफ। So I think this was Bank Nifty's strategy. We'll quickly go and observe the OI data. What is our OI data saying? Total open interest. So if you carefully observe, we have highest support at 24,500. So अगर जिसको लॉन्ग भी जाना है उसके लिए अल्टीमेट स्टॉप लॉस होगा 24,500 का। ठीक है, अगर मार्केट आपको निफ्टी डिप दे रहा है ऑन ओपनिंग टिल 24,600, 600 आई थिंक दैट्स अ, क्योंकि 600 के ऊपर मार्केट ने आपको एक ब्रेकआउट दिया था, तो 600 रह सकता है। बट मार्केट के पास 600 पे भी देखो एक सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, लेकिन अल्टीमेट सपोर्ट इज़ वेरी गुड सपोर्ट है 24,500। सो अगर किसको लॉन्ग्स एंटर करना, डिप आती है मंडे ट्यूसडे को, तो 24,500 इज़ अ ग्रेट गुड पॉइंट टू एंटर लॉन्ग्स ऑन। देखो ऑन द अपसाइड आपको देखो ये 24,900 एंड इवन 24,800, तो ये बोल रहा हूँ अगर मार्केट फ्लैट और हल्का सा गैप खुल गया तो 24,800 वाले कॉल सेलर्स पैनिक करेंगे, इसकी वजह से ये भी पैनिक करेंगे, एंड वी कैन सी अबव 860 890 देयर इज अ इजी मूव टुवर्ड्स 25,000। कोई दिक्कत नहीं है 25,000 में, 25,000 हैज अ ग्रेटर कॉल वाई। सो एट 25,000 एंड इट्स अ बिग साइकोलॉजिकल नंबर, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक 100 to 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुकिंग आए टिल 24,800 अगेन, राइट। उसके बाद फिर वहाँ पे 800 पे बेस बनेगा एंड देन वी कैन सी द लेवल ऑफ 100 200। बट जो द मोमेंटम वी सॉ ऑन फ्राइडे, लग रहा है कि वो 100 पॉइंट्स भी 50 पॉइंट्स का ही आई थिंक मूवमेंट होगा, एंड वी कैन अगेन सी द बुलिश मोमेंटम। इफ़ यू लुक एट बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो आपका ओपन इंटरेस्ट है फॉर 31 जुलाई, अल्टीमेट रेजिस्टेंस इज 52,000। देखो ओआई डेटा के हिसाब से भी लोगों ने, क्योंकि अब आप ये चीज़ देखो ना, यू आर स्टडिंग द चार्ट्स, राइट, एंड आपने सारे पैटर्न्स बना लिए, आपने फिबोनाची बना लिया, सब बना लिया आपने, क्यों 50,000 52,000 पे इतना रेजिस्टेंस है? इट वुड हैव बीन 53,000। why there is a huge, so huge resistance of 50,000? क्योंकि वो ट्रेंड लाइन का स्टॉप पॉइंट है, द पॉइंट्स विच वी सॉ ऑन चार्ट्स टेक्निकलिटीज, वो हम और सबने भी देखे होंगे ना, दैट्स व्हाई 52,000 हैज अ ग्रेटर कॉल सेल्स पोजिशंस, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वहाँ उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। एंड आप देखो अगर 50,000 का कॉल ऑप्शन होगा, मान लो रफली 200 300 पॉइंट्स का, इफ़ यू टुडे गो एंड सेल 50,000, सो टिल व्हाट पॉइंट यू आर सेफ? 50 to 300, राइट। 50 to 300 के ऊपर जाएगा तभी आपका कॉल में वैल्यू बढ़ेगी ना। आपने मान लो 300 पे सेल किया, यू हैव सोल्ड 52,000 कॉल ऑप्शन एट 300, सो टिल व्हाट पॉइंट यू आर सेफ? उसका तीन जब वो एक्सपायर होगा, व्हेन द बैंक निफ्टी वुड एक्सपायर 52,000 कॉल ऑप्शन, at what value it will expire? If the markets are at 50 to 300, then also it can expire at 300 points. So till 50 to 300 these call sellers are safe. So real panic 52,000 के call sellers में कब आएगा? above 50 to 300। बट उससे पहले आपका एक बड़ा रेजिस्टेंस है 51,500 का, जो अगर निकलता है तो आपका क्लियर मूव है 52,000 का। 52,000 आई एल ऑल्सो लुक टू शॉर्ट बैंक निफ्टी अगेन बिकॉज इट्स सेल ऑन राइज। All right, so this was traders, the OI analysis, the charts analysis. It's a long video, 43 minutes video, but I think it should give a clarity to you for the next week, the range for the next week for banks, the range for the next week for Nifty, and what the OI data is saying. All right, the for bank nifty the support is at 5500, good support as, and equal support is 51,000 also. That's what I'm saying, अगर 51,000 टूटा तो 5500 तक का एक और मूव आएगा, और ये अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो। this 500 points you can go short if we are sustaining for 15 minutes below 51,000। बट ये एक यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सेल हो चुका है, तो ये मार्केट लिक्विडिटी लेने ट्रैप भी कर सकता है। अ ब्रेक बिलो 51,000 और 50 60 पॉइंट्स एंड देन अगेन क्विकली कमिंग बैक। अगर आपको सस्टेन करना पड़ेगा आपको टिल एटलीस्ट 30 मिनट्स 1 आवर बिलो 15,000, क्योंकि क्या होगा अगर मान लो किसी को बाय करना है और उनको लिक्विडिटी चाहिए, तो वो रिटेलर्स को आके सेल करवाएंगे बाय ब्रेकिंग बिलो 51,000। सो पहला द फर्स्ट ब्रेक बिलो 51,000 कैन बी अ लिक्विडिटी ट्रैप, सो वहाँ पे आपको यू नीड टू टेक केयर अ बिट। Alright, so this was everything around OI data, around charts, technicals on Bank Nifty and Nifty. So I hope you have got a clarity on how to trade the coming week, and the month will end in I think 3 days. So we'll have a video for the next month, the August series, and probably I'm thinking to make a video on stocks also, but I think SEBI guidelines do not allow us to name any stocks, or in the videos it's against their guidelines, so that's why majorly we do not make any videos on stocks. All right, so I hope you have got a pretty much clear scenario in your mind that what
that what levels will be crucial for you, what what is the why data saying, and how to approach the markets on Monday and for the coming week. Thanks traders, be safe in the markets. If you have liked the video, if you are someone from the Telegram group, leave a like, leave a comment, share it with your trader friends. If you are someone new watching the video for the first time, and if you are liking the video, subscribe to the channel. Thanks traders, be safe in the market.